Hi, my name is Utkarsh Jain. I'm a third generation entrepreneur in Northeastern Carrying Corporation Limited. We started with a new venture called SG Green Logistics. It is focused on logistics through electric vehicles. Company focused entirely on EV trucks. So we are procuring electric vehicles from IPL Tech and we are deploying them majorly in the steel and cement industry. The idea came when we were talking to few steel and cement companies and their consciousness regarding the ESG, and they needed a solution wherein they could electrify their supply chain ecosystem. We approached IPL Tech and to our surprise they were more than happy to do a trial on our behalf with that customer, at an actual loaded trial. We did that, we got the confidence that the truck has the capability to lift a certain amount of tonnage and the particular goods that we were targeting. They are happy to support you in the entire process, right from doing a survey to actually installing chargers, finally supporting you in the maintenance when the trucks are running. So we placed an order initially of about 50 vehicles and we started with few steel companies, and that is when we realized that the capability of the vehicle is actually far superior than a typical ICE vehicle. So we already have about 100 vehicles which are currently operating and running, and we plan to add about 150 more trucks in this financial year. The operational benefit that I see over ICE vehicles is the cost of electricity and the kilometers, the average unit consumption per kilometer. It more or less accounts to about 50% or typically more in certain cases compared to ICE vehicle, and the maintenance cost is also, I would say, comparably cheaper and more effective because the AMC team of Rhino Electric Trucks is always present on the project side and they ensure an uptime of about 99% for these vehicles. Savings is one part, and other than that, the hassle of dealing with the typical ICE vehicles, right? The theft of diesel, theft of spare parts and so many other things practically goes away. The driver feedback is pretty good. They are very happy driving these trucks, more so because they do not have any manual gears, and the effort needed to drive these trucks is far less compared to an ICE vehicle. They have deployed their team on all our sites wherever these trucks are operating pan-India, and their team are available 24/7. So my trucks practically do not have to suffer or stand due to some technical or mechanical failure, right? Because team is always there to support and make sure that the truck is back on track. At SG Green Logistics, we plan to actually go net zero in the terms of carbon emissions. So we've already started deploying this solar infrastructure at few of our parking locations. So definitely we have plans to do a large capex specifically for installing the renewable energy sources. I would definitely like to recommend IPL Tech Rhino Electric Trucks to other fleet operators as well. It is definitely something worth trying. It can add up to big savings for my fellow fleet operators. नमस्कार, मेरा नाम नवीन शर्मा है। मैं SG ग्रीन से स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ। मैं फाउंडर मेंबर हूँ SG ग्रीन का। बहुत ही कम समय में, लगभग 1 साल से कम समय में हमने 100+ फ्लीट को क्रॉस कर चुके हैं। हमारी सभी जो गाड़ियां हैं वो अभी कॉइल ऑपरेशन और पाइप ट्रांसपोर्टेशन में लगी हुई हैं। रायपुर के अंदर में हमारी जो भी फैसिलिटी है, हमने प्लांट की जो शेड है उसके ऊपर में सोलर पैनल लगा रखे हैं और टोटल व्हीकल हमारे सोलर पैनल में ऑन ग्रिड चार्ज होते हैं। और आगे हमारा प्लान है सभी जगह जहाँ भी हमारी पैन इंडिया में फैसिलिटी है, सब जगह हम जीरो एमिशन की तरफ ही बढ़े। जब गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि भी ESG में कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना है, तो ऑब्वियसली हमने पिछले 1 साल के अंदर में 50,000+ ट्रिप कवर की है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो हम मोर देन 7,000 टन्स CO2 कम कर चुके हैं। आज की जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, लोड फैकल्टी की जिस हिसाब से हमारे रोड बन गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये गाड़ी बनी है। ये गाड़ी पूरी AMT बेसिस है, तो ड्राइवर को इसमें क्लच वगैरह नहीं है, तो उसको चलाने में बड़ा सुविधा होती है। पूरे दिन में 24 घंटे में मोर देन 200 किलोमीटर ड्राइवर आराम से चला लेता है। गाड़ी का नॉर्मल लोड और हैवी लोड में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। गाड़ी की जो लोडिंग कैपेसिटी है, पुलिंग कैपेसिटी जो नॉर्मल डीजल गाड़ी है उससे बहुत ही बेहतर है।
IPL टेक की जो बैक हैंड टीम है जो हमारे साथ काम कर रही है, सर्विस एंड सपोर्ट सिस्टम है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। प्लांट के अंदर में ही कंटेनर सेटअप किया हुआ है और एक QRT टीम बनी हुई है जो कि गाड़ी का कभी भी कोई ब्रेकडाउन सिचुएशन आती है या कोई दिक्कत आती है गाड़ी के अंदर में, तो उनका QRT टाइम है वो लेस देन 30 मिनट्स है। दूसरा, इसके अंदर जो टेलीमेट्रिक्स है उसमें जो ओनर होता है, ओनर को भी सारी डिटेल्स मोबाइल में, अपने लैपटॉप में इजीली पता चल जाती है कि गाड़ी ने कितना ट्रिप लगाया है, गाड़ी चार्जिंग कितना परसेंटेज हुई है। तो GPS में हमको गाड़ी कहाँ है पूरा रियल टाइम लोकेशन मिल जाती है। ड्राइवरों का पता चल जाता है गाड़ी कहाँ हाल्ट हुई है, कहाँ पे ड्राइवर की कोई लापरवाही तो नहीं है। रियल टाइम एक्यूरेट डाटा टेलीमेट्रिक्स के द्वारा हमारे पास पहुंच जाता है। मेरा नाम धीरेन्द्र है और मैं SG ग्रीन में गाड़ी चलाता हूं। मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का और 1 साल से मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा हूं। डीजल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी में फ़र्क धरती आसमान का है। हम करीबन 1 साल से जब से गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे हैवी लोड हो या कम लोड हो, गाड़ी एकदम स्मूथली चलती है। कभी पता ही नहीं चलता कि खाली है कि लोड है। ये ऑटोमेटिक गाड़ी, इसमें गियर वेयर लगाना नहीं है, और जो दूसरी गाड़ी थी उसमें पहले गियर लगाना पड़ता था, क्लच दबाना पड़ता था। इसमें केबिन गर्म भी नहीं होता, वो गर्म होती थी बहुत पहले, उसमें इंजन रहता था, इसमें मोटर है तो गर्म भी नहीं होता है, इसलिए चला लेते हैं 100-200 किलोमीटर। जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार सोंधिया है। मेरा गाड़ी से यहाँ से रायपुर जाता है, करीब 120 किलोमीटर अप डाउन रहता है एक चक्कर में। 24 घंटे में करीब 2 चक्कर या 3 चक्कर लगता है। गाड़ी लोड होके चलती है तो शोर नहीं होता, मस्त चलती है, बढ़िया कि गाड़ी को ताकत नहीं पड़ती, बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देता। जैसे डीजल गाड़ी में अब बाहर का आवाज़ सुनाई देता हो, ऐसे सुनाई नहीं देता। यहाँ के जो इंजीनियर हैं और यहाँ के मैकेनिक हैं तो यहीं पे रहते हैं। गाड़ी जैसे आई तो अपना आए तो चेकअप भी किए, गाड़ी को मेंटेनेंस भी किए, अगर रास्ते में खड़ी हो गई तो रास्ते में फ़ोन किए, वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। मेरा नाम विपिन कुमार यादव है। गाड़ी तो मान लीजिए 12-13 साल से चला रहे हैं और अभी फ़िलहाल कम से कम 1 साल से रेनो चला रहे हैं। और गाड़ी से मान लीजिए इसमें कंफर्टेबल है, और गाड़ी में जैसे क्लच होता था उससे कंफर्टेबल है इसमें कि मान लीजिए गियर चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें हैवी लोड हो, नॉर्मल लोड हो, चढ़ाएँ हो या थोड़ा सा घाट सेक्शन भी हो, उसमें गाड़ी पिकअप नहीं तोड़ती, सीधा जिस चाल में आ रही है उसी चाल में गाड़ी चली जाती है। और गाड़ी का चढ़ाए पे थोड़ा उसका पिकअप कमता है, लेकिन ये जिस पिकअप में गाड़ी जाती है, मान लीजिए लोड हो या खाली हो, उसी पिकअप में गाड़ी चली जाएगी। मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं SG लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। 8 महीने से रेनो इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ी जब से चला रहा हूँ उसमें काफ़ी शरीर को कंफर्टेबल रहता है, और गियर भी नहीं है, क्लच भी नहीं है, उससे ज़्यादा हमको अच्छा लगता है चलाने में। और इसका जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी दूसरी गाड़ियों से नॉर्मल कटता है, अच्छा टाइट नहीं है। वो एक ही हाथ से भी कहीं भी घुमा लो, लोडेड गाड़ी भी खाली भी गाड़ी, इसमें हैवी लोड और नॉर्मल लोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बरोबर गाड़ी चलती है। चढ़ाई में भी, प्लेन में भी अच्छा पिकअप से चलती है गाड़ी। जी, मेरा नाम चंद्रभान सिंह है। SG ग्रीन लॉजिस्टिक में सर कंपनी में गाड़ी चला रहा हूँ। पहले मैं जैसे डीजल गाड़ी चला रहा था, उसमें क्लच है, गियर है, तो थोड़ा उसमें थकान सी महसूस होती थी। और इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्लच नहीं दिया है, गियर दिया है, ऑटोमेटिक है, उसमें एक गियर देना पड़ता है, बाकी सब ऑटोमेटिक है। एक्सीलेटर के हिसाब से गियर जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे अपनी आप गियर लेती चली जाती है। दिन में 2 से 3 ट्रिप होता है। अच्छा पोजीशन रहने पे, अगर लोडिंग है सही, इधर अनलोडिंग भी सही है तो 2 से 3 ट्रिप हो जाता है। मेरा नाम अच्छे लाल सिंह है और इलेक्ट्रिकल गाड़ी चला रहा हूँ। इसमें क्या है ना, गियर वगैरह नहीं है तो गाड़ी चलाने में मेरे को थकावट नहीं होती है। बार बार हमको गियर चेंज नहीं करना पड़ता, बार बार हाथ पैर नहीं चलाना पड़ता है। गाड़ी में इंजन नहीं है, हीट नहीं होती है। डीजल गाड़ियों में इंजन के वजह से हीट होती है, गर्मी लगता है बहुत, आदमी का बार बार गियर चेंज करना पड़ता है तो आदमी का शरीर थकावट आता है। सर्विसिंग बहुत अच्छी है। अपन कहीं भी गाड़ी ब्रेक डाउन होता है तो उस टाइम पे कॉल करो, तुरंत आदमी मैकेनिक इंजीनियर आ जाते हैं, आप उनको सर्विसिंग करके दे देते हैं। मेरा नाम इरशाद हुआ सर, इरशाद खान। गाड़ी IPL का इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाता हूँ। इसमें काफ़ी फैसिलिटी है, क्लच लेस गाड़ी है,
केबिन भी काफ़ी ठंडी रहती है डीजल इंजन के मुकाबले में। लोड भी बहुत अच्छी लेके चलती है, जितना भी माल डाल दीजिए आराम से लेके चलेगी गाड़ी। चार्जिंग में 1 घंटा लगती है, 1 घंटा 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। इसका सर्विस बहुत अच्छा है, एनी टाइम इसका इंजीनियर अवेलेबल रहता है और कभी भी कितना 24 घंटा कभी भी दिक्कत होगा तुरंत आ जाएगा वो और ठीक कर देगा। और ज़्यादातर तो ख़राब नहीं होती है, बिल्कुल ठीक रहती है गाड़ी।